کرے، خداوند مجھے مہیا کرے، خداوند میری سن لے، خداوند میری ہر دعا کو، ہر التجا کو، ہر فریاد کو خداوند سنے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آج آپ سب کو پتا ہے کہ پاک میز ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ گلدستے والی کسی کے گھر میں پڑا ہے، وہ ذرا ہے کسی کے پاس؟ اگر کسی کے گھر میں زیادہ گلدستے والے ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج کا کلام جو ہے نا، یہ خداوند میں شامل ہونے کے لیے ہے، خداوند میں شامل ہونے کے لیے ہے۔ اور آج ہم لوگوں نے خداوند میں شامل ہونا بھی ہے، پاک شراکت کے تھرو، پاک میز کے تھرو۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے کیا کہا تھا جب وہ پاک شراکت، پاک روٹی کو توڑنے لگے تو انہوں نے ایک بات کہی، سب باتوں کو پیچھے کیا اور ایک بات کہی۔ آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہاللیلویا۔ کون کون خداوند کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہے کہ میں خداوند کی آواز کو سنوں گا، سنوں گی، اور اس پر عمل کروں گا، کروں گی، اور میں خداوند کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں گا، وابستہ ہو جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں، یوحنا کا خط اس کا 15 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ یوحنا رسول 15 باب 15 چیپٹر ورس 1۔ اگر کسی بیٹی نے یا بیٹے نے نکال لیا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ آزادی ہوتی ہے کہ جو جلدی نکالتا وہ پڑھ لے۔ 15 باب کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ کیا ہے؟ انگور کا حقیقی درخت۔ یہ یاد رکھیں کہ آج کا جو دن بہت اہم ہے نا، اس دن یہ خداوند نے کہا تھا، پاک شراکت کے دن یہاں پہ کہا تھا کہ پاک میرے تو سب چیزوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا، اور کیا کہا یہ سنے، غور کریں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے وہ پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ ہاللیلویا۔ کلام نصیحت کرنے کے لیے ہتھوڑے کی مانند ہے۔ ہاللیلویا۔ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، یہ کڑوا بھی ہے، لوگوں کو کڑوا بھی لگتا ہے، غصہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کڑوی چیز ہو نا تو وہ منہ سے باہر پھینکتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ نصیحت کرے، ہر روز مجھے ملامت کرے، ہر روز مجھے جھڑکے، ہر روز مجھے نصیحت کرے، جو نصیحت پاتا ہے وہی آگے کامیاب ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم لوگ خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں تنقید کرتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ تنقید ہے تو اگر گناہ کو گناہ ثابت نہیں کریں گے تو پھر وہ کلام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طرفداری ہے۔ ہاللیلویا۔ میں کہتا ہوں مجھ پر کریٹیکل کریں، مجھ پر نکتہ چینی کریں کہ یہ ہے، مجھ پر خداوند کرے، مجھے نصیحت کرے، روز کرے، تجھ میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، مجھ میں غلطیاں نکلتی جائیں گی، میرے عیب نکلتے جائیں گے، میں کامیاب ہوتا جاؤں گا۔ جب تک ہم گناہگار رہیں گے، گناہ کو چھوڑیں گے نہیں، تب تک خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے آج خداوند کی میز میں ہاتھ بڑھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، بھولنا ہے۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ انگور کا حقیقی درخت ہے۔ یہ مثال لگا لیں، یہ ایک درخت ہے، یہ چھوٹا سا دیکھ، یہ کیا ہے؟ درخت ہے، ٹھیک ہے۔ درخت کون ہے؟ یسوع۔ کون ہے؟ یسوع۔ انگور کا حقیقی درخت
मैं हूँ। हालेलुया। और बागबान कौन है? मेरा बाप, जो हमें डेवलप करता है, हमें बचाता है, हमारी रखवाली करता है, हमारी फिक्र करता है। बागबान जो होता है वो सबकी परवाह करता है। हालेलुया। एक एक की परवाह करता है। हालेलुया। तो ये डाली जो है, यीशु क्या है? यीशु दरख्त है। क्या है? और खुदा क्या है? बागबान है। और हम क्या हैं? हम डालियां हैं। हालेलुया। दरख्त के अंदर डालियां रहेंगी तो फिर जाके ये साथ शमूलियत करती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। अगर इनको पानी लगता रहेगा और इनको खुराक मिलती रहेगी। अगर अच्छी खुराक मिलेगी तो आप कामयाब हैं, मैं कामयाब हूँ। अगर अच्छी खुराक नहीं मिलेगी तो कहते हैं ना कि सुबह सुबह जाके अच्छा नाश्ता, कोई आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप सब्जी पकाते हैं कि गोश्त? क्या पकाते हैं? अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आपने उधार भी ले लेना कि हमारी नाक रह जाए। हालेलुया। हमें खुराक मिले, इनको खुराक मिले कि ये हमारे घर में आए हुए हैं। हम किसके घर में आए हैं? आज खुराक लेने आए हैं। तो क्या खा रहे हैं आप? खुराक। अच्छी खुराक है, ये गोश्त से ज्यादा अच्छी है। हालेलुया। गोश्त आपके मैदे को खराब कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, आपको कोई ना कोई डिजीज में लेके आ सकता है। ये वाहिद खुराक है कि जो आपको डेवलप करेगी और आपकी तरक्की के लिए होगी, आपकी सेहत के लिए होगी, आपकी डेवलपिंग के लिए है, आपकी रूहानी तरक्की के लिए है। हालेलुया। 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 हमें स्पिरिचुअल बनना है, हमें रूहानियत में बढ़ना है। अगर हम लोग रूहानियत में बढ़ेंगे तो हम तरक्की पाते जाएंगे। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा है कि मैं दरख्त और बागबान मेरा बाप और तुम मेरी। ये किनसे कहा? शागिर्दों से। शागिर्दों से उस वक्त मेज पर कहा कि तुम मेरी डाली, तुम मेरी डालियां हो। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हें बढ़ाता रहूंगा। हालेलुया। बात है कायम रहने की। अगर दरख्त के साथ, तने के साथ जो ये है शाखें हैं, ये चपकी रहें, चिपकी रहें तो खुदावंद बरकत देगा। हालेलुया। कौन कौन खुदावंद के साथ लिपटा रहेगा, खुदावंद के साथ शमूलियत करेगा कि मैं खुदावंद, मैं तेरी शाख हूँ, मुझे पानी मिलता रहे, मुझे तेरी जिंदगी का पानी मिलता रहे, मुझे तेरी खुराक मिलती रहे, मैं बढ़ता रहूं, मैं बढ़ती रहूं, मैं तरक्की करूं, मैं खुदावंद तेरे जलाल में बढ़ूं, क्योंकि तेरे वसीला से खुदावंद मैं बरकत पाऊंगा और पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद हमें क्या करता है? ये खुदा ने क्या कहा? मैं कौन हूँ? यीशु ने क्या? मैं क्या हूँ, कौन हूँ? तो क्या था वो? अंगूर का। हालेलुया। तुम कौन हो? तुम क्या हो? आप लोग क्या हैं? क्या हैं? और बाप क्या है? हालेलुया। तीनों का रोल बता दिया है। और ये सावधानी, ये बहुत बड़ा दरख्त है। यीशु मसीह, एक और बात गौर से सीखिए कि ये जो डालियां हैं ये उसमें से होके उठी, ये कैसे आई? नहीं, उसमें डाली होके नहीं आई है। वो जो डालियां लगी नहीं है, उन्हें चुना गया था, वो पीछे पीछे आई है डालियां। तो कैसे आई है? पीछे पीछे आई है, ईमान लेके आई है। यीशु मसीह के शागिर्द ईमान लेके आए हैं, उसमें से नहीं निकले, जैसे दरख्त में से निकले हैं। ये वो डालियां हैं जो पीछे पीछे आई हैं, जिनको चुना गया है। हालेलुया। हम लोग भी जो है आज चुने गए हैं, हम उसके अंदर से नहीं निकले तो कैसे हम
उसकी डाली बनेंगे जब हम ईमान लाएंगे, यीशु पर ईमान लाएंगे, फिर हम उस दरख्त के साथ वाबस्ता हो जाएंगे और उसमें शामिल हालेलुया। कौन कौन शामिल होना चाहता है कि मैं खुदावंद, मैं आप मसीहत में हैं तो मसीह हैं, आप मसीहत में हैं तो मसीही हैं, क्या है मसीही हैं। मेरी याद रखें, मसीहत जो है ना वो है एक मजहब, मसीहत जो है वो है एक मजहब। आप मसीह घर में पैदा होती हैं, आप मसीह नहीं हैं जब तक आप शाख नहीं बनते, डाली नहीं बनते। आपको माँ बाप ने जन्म दे दिया है, दूसरा जन्म आपने दोबारा लेना है खुदा के पाप से। हालेलुया। उसमें शामिल होना, उस दरख्त की क्या बनना, शाख बननी। हालेलुया। बाद लोग देखा कहलवाते मसीह हैं और काम लड़ाई झगड़े फसाद चुगली वगैरह करते हैं, वो मसीहों वाले हैं नहीं है। तो जितनी देर तक आप खुदा के जलाल में नहीं आएंगे, आप मसीह नहीं हैं, आप मसीहियत में क्या है, मसीहियत में हैं। क्योंकि मसीहियत एक मजहब है और मसीही जो है ये एक राष्ट्रवादी की निशानी है। कौन कौन राष्ट्रवाद बनेगा? तो मैं राष्ट्रवाद बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। हालेलुया। दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है बेटा, ये जरा पढ़ो, ये गौर करने वाली बात पे मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। जो डाली मुझ में है, क्या है, जो डाली मुझ में है, आगे, और फल नहीं लाती उसे वो काट। हालेलुया। बेशक आपने बपतिस्मा ले लिया है, अगर आप फलदार साबित नहीं ना हो रहे तो वो काट सकता है, वो काट सकता है। हालेलुया। वो काट सकता है। आप बपतिस्मा याफ्ता हैं, अगर निजात याफ्ता हैं, ईमानदार हैं, तो उसमें कायम कैसे रहना है ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। हालेलुया। क्योंकि आपको बपतिस्मा से पहले सिखाया जाता है कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, इस चीज से नफरत करनी है, इस चीज से राहत करनी है। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन ऐसा करेगा कि मैं खुदावंद तेरे अहकामात को मानते हुए खुदावंद खुदा तेरे आइन को मानूंगा, मानूंगी, और खुदावंद खुदा तुझ में होते हुए निजात याफ्ता रहूंगा और रहूंगी। हालेलुया। खुदावंद ने क्या कहा था एक और जगह पर, यीशु मसीह ने 2 मरतबा हम लोगों को अपने साथ वाबस्ता किया। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और तुम मेरे हो। क्या अच्छा चरवाहा होगा तो पेड़ों की रखवाली करेगा। दाऊद बादशाह चरवाहा था, वो पहाड़ों पर जाता तो सबसे पहले खतरा मोल लेता और जाके देखता आगे कोई शेर कोई और चीज तो नहीं है, तो जो ये भेड़ों को न खा जाए, इनको फाड़ न दे। पहले आज हम खादमों को चाहिए आया कि ये किस रास्ते पर जा रहे हैं, ये अबलीस जो इनको फाड़ ना खाए, पहले जाके देखें कि ये क्या है। जो कोई काम कोई भी कर रहा है तो मतलब वो तनकीद नहीं करते, वो इनको मलामत नहीं करते, वो कहते चल ठीक है यार करता जा सानू की लगे साढ़े का नहीं तेरा मेंबरशिप है लिया। तो वो क्या करता है, वो पहले जाता पहाड़ पर, 23 सबूर में देखा ना, तो वो हरी हरी चिरगाहों पर मुझे ले जाता है, हरी हरी चिरगाहों। हालेलुया। वो हमें हरी हरी चीजें देता है, खाने के लिए सुधा करता है, वो क्योंकि वो चिरवाहा है। और आज चिरवाहे जो है, आज चिरवाहे आज आप और आज जानते बड़ी गल है। हालेलुया। हालेलुया। चिरवाहे का क्या काम है कि सबसे पहले वो देखे कि मेरी भेड़ें भूखी तो नहीं है, इनको प्यास है। वो सबसे पहले जाके क्या देखते हैं, यहाँ पे पानी है कि नहीं है, वहाँ पे लेके जाते थे। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा, ये गांव में अक्सर देखा होगा, हरियाली वाली जगह पे जो भैंसी या कोई भेड़ी हैं
ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ہری گھاس وغیرہ یا ہرا چارے کے پاس لے کے جاتے ہیں اور پانی کے پاس لے کے جاتے ہیں، کبھی خشک کے پاس نہیں ہے۔ ہللویا۔ ہری گھاس کیا ہے کہ جو آپ کو روز خوراک ملے، آپ بڑھتے جائیں، آپ گروتھ کرتے جائیں، آپ نمودار ہوتے جائیں، آپ خدا میں بڑھتے جائیں۔ اور پانی کیا ہے؟ خدا کا جلال ہے، چشمہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ چشمہ ہے۔ اور چشمہ بڑا کیا ہے؟ ایک چیز ہے، تالاب ہے نا، تالاب۔ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ 38 سال کے بیمار جو تھا وہ ایک مرتبہ صرف جب وہ ہو جلتا تھا نا تو ایک انسان شفا پاتا تھا۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ کیا تو چاہتا ہے؟ اچھا ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں۔ اور یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ، کیونکہ وہ تالاب جو ہے، وہ تالاب آپ نے دیکھا تالابوں میں جو ہے نا اسمیل آتی ہے، بدبو پڑ جاتی ہے۔ اور چشموں کے پاس کبھی بھی ایسا کام نہیں ہے، وہ تازہ پانی ہوتا ہے۔ چشمہ جو ہے یسوع ہمارا ہے، وہ تازہ پانی دیتا ہے، وہ ہمیں ہریال کرتا ہے، ہمیں ہرا بھرا کرتا ہے، ہمیں ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاللویا۔ ہم نے حوض کی طرف نہیں بڑھنا بلکہ ہم نے چشمہ کی طرف بڑھنا ہے۔ جو چشمے کی طرف بڑھتا ہے خدا اس سے بڑھاتا ہے اور اس کی زندگی کو دھوتا ہے۔ ہاللویا۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ درخت مان گیا ہے۔ کیا کیا؟ درخت مان گیا ہے۔ اور یہ ہم یاد رکھیں کہ ہم اس کی ڈالیاں ہیں، ہم اس کی کیا ہیں؟ اور ڈالیاں جو ہیں اگر سوکھنے لگے تو باغبان کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان کو جلدی کھودی کرو، اسے پانی دو، یہ سوکھ نہ جائے، یہ مرجھا نہ جائے۔ جب آپ سوکھنے لگتے ہیں، بیمار ہونے لگتے ہیں، کمزور ہونے لگتے ہیں، آپ کی گھر سے بیماری نہیں جاتی، دکھ نہیں جاتا، تکلیف نہیں جاتی، آپ یسوع کو یاد کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کے گھر کو آپ سجاتے ہیں اور اس کے گھر میں آتے ہیں۔ اور یہ ہری بڑی جلیاں جو ہیں یہ لگاتے ہیں ایسٹر پہ یا اور تہوار پر، ہم کیا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ کرسمس پہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ہریالی کی نشانی ہے کہ خوشحالی۔ ہاللویا۔ اپنے گھروں میں خوشحال رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاللویا۔ میں نے یہ دیکھیں ساری جو نا ذمہ داری یہ پاس کر دیا ہے، صبح آئے یہ سارا کریں، یہ ڈسٹنگ وغیرہ ہر چیز، یہ پینٹ کرنا ہے، یہ تو غلط ہے۔ آپ خدا کے گھر کو دیکھیں گے، خدا آپ کے گھر کو دیکھیں گے۔ کبھی کسی نے غور کیا کہ یہ چیز ہے تو میں تھوڑا سا ساتھ جو خدا کے کاموں میں ہاتھ بڑھاتا ہے، خدا اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے کاروبار کو بڑھا دیتا ہے۔ ہاللویا۔ تو کون کون ایسا کرے گا کہ میں پہلے دیکھوں کہ کوئی کمی تو نہیں ہے؟ ہاللویا۔ ہاللویا۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ کیا ہیں؟ بھیڑیں ہیں۔ تو وہ ہمارا چرواہا ہے۔ اس سے آپ کے پاس کوئی جانور ہو نا، میرے سے نا اپنے بچیاں نے تو ہی کہہ دیں گے یہ بڑا ماڑا ہو گیا، بڑا سلا لیا ہو گیا ہے، اینو کوئی خوراک کو دو، اپنے گھر کے وچ سلاح کر کے دیں۔ ہن باپ اور بیٹا کیا کہے گا کہ اس کی طرف فکر کی جائے، اس شاخ کو ہریالی کی طرف لے کے آئیں۔ یہ مرجھانے لگی ہے، اسے خوشحال کیا جائے، یہ مرجھا نہ جائے، یہ خوشحال ہو جائے۔ ہاللویا۔ تو ہم نے کسے پکڑ کے رکھنا ہے؟ ہم نے کسے پکڑ کے رکھنا ہے؟ خدا کو پکڑ کے رکھنا ہے، خداوند کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ہاللویا۔ خداوند نے کیا کہا؟ میں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ ہاللویا۔ تو کون کون ڈالی بنے گا؟ کہ میں خداوند تیری ڈالی بنوں گا۔ ہاللویا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں شامل ہونے کے لیے، اس کی ڈالی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا ہے۔ ہاللویا۔ آپ اس میں شامل ہو گئے تو آپ اس کی ڈالی بنیں گے۔ ہاللویا۔
सिर्फ आप बपतिस्मा लेके सिर्फ खुद को छोड़ना दें, बल्कि आगे बढ़ना भी है। आए हम खुदा के कलाम में से पढ़े रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी तीसरी और पांचवी आयत। तीसरी और पांचवी आयत, पहले तीसरी आयत पढ़े फिर पांचवी आयत पढ़े। देखो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि कैसे आप वाबस्ता होंगे, कैसे आप खुदावंद में शामिल होंगे, कैसे आप खुदावंद की मेज में हाथ बढ़ाएंगे। आज क्योंकि हमें हाथ बढ़ाना है, आज उसमें शामिल होना है, आज उसकी हमने शाख बनना है। हालेलुया। जी बेटा पढ़े। छह बात की तीसरी। जी पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा। एक मिनट बेटा ठहरे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। गोश्त नहीं खाना है, कलाई जान के साडे भैन भरा ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਰੋਤੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ ਵੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਸਮੂਮ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਰੁਟੀਨ ਸਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਰੁਟੀਨ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਦਤ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। हालेलुया। हालेलुया। तो जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, किसमें? मसीह में बपतिस्मा लिया वो शामिल होगी। कौन बपतिस्मा याफ्ता है कि मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ, मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं खुदा की शाख बन गई हूँ, मैं बन गया हूँ। हालेलुया। और जितनों ने खुदा को कबूल किया हुआ है वो अपने लिए तारीफ है। बेटा पांचवी आए। शहाबत व्यवस्था हो गई हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसकी मौत के साथ व्यवस्था हो गए हैं तो उसके जी उठने से भी व्यवस्था है। हालेलुया। उसकी गवाही देनी है आप लोगों ने, मैंने गवाही देनी है कि खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीता है और जीता रहेगा और हमारी रखवाली करेगा। हालेलुया। हमें बरकत देगा। हालेलुया। वो ऐसा पेड़ है जो मुरझाता नहीं है, वो ऐसा पेड़ है जो हमें तरोताजा रखता है, जो हमें क्या करता है, होश में रखता है, हमें तवाना रखता है, हमारी सेहत याबी के लिए हमारे साथ साथ है, हमें बरकत देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें जोर देता है। हालेलुया। तो कौन है? डाली है, तने के साथ व्यवस्था रहेगी, व्यवस्था रहेगी। हालेलुया। क्या करना है? कौन डाली व्यवस्था रहेगी कि मैं व्यवस्था रहूंगा, मैं शामिल रहूंगी। हालेलुया। एक मिनट के लिए सब दिल में दुआ करें कि खुदावंद मैं तेरे साथ व्यवस्था रहूंगा। और खुदा तू मुझे जिंदगी का पानी अता करेगा, तू मुझे हरियाली की तरफ लाएगा, तू मुझे बरकत की तरफ लाएगा। हालेलुया। फिलिप्पियों 3 बाब और उसकी 27वीं आयत। फिलिप्पियों का खत 3 बाब और उसकी 27वीं आयत। तो ये आज जुड़ने के लिए है, व्यवस्था रहने के लिए है, शामिल होने के लिए है, दरख्त के साथ रहना है, उसके साथ ग्रोथ करनी है, उसके साथ बढ़ना है। जब उसके साथ रहेंगे तो तरक्कियां, सरफराजियां, कामरानियां, बेरोजगारियां, बीमारियां, लाचारियां, दुख, मुसीबतें, नसीहतें, परेशानियां, रोग खुदा दूर करेगा, क्योंकि वो हरा दरख्त है, वो आग को मरझाने नहीं देगा, वो आग के साथ साथ रहेगा, वो
आपको खुश्क होने नहीं देगा, वो आपको हरा भरा रखेगा और आपको हर तरह की बरकत देगा। हालेलुया। बरकत के लिए तो खुदावंद ने बरकतें देता है। हालेलुया। हाँ जी बेटा पढ़े। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया। मसीह को पहन लिया। ये देखें, ये एक दरख्त है। जब दरख्त के साथ शाखें हैं तो इसके साथ व्यवस्था होगी। व्यवस्था कौन कौन हुआ है? तो मैं दरख्त के साथ व्यवस्था हूँ और मेरी क्या है शनाख्त क्या है कि ये एक अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम इसकी डालियां हैं। हालेलुया। आपने हरी डाली बनना है, सूखी डाली नहीं बनना। कौन कौन सूखी डाली नहीं बनेगा? जो सूखी डाली नहीं बनेगा वही कामयाब होगा, वही सरफराज होगा, वही कामयाब होगा, वही कामरान होगा, वही तरक्की पाएगा, वही जलाल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जलाल का पता है जलाल क्या है? हम कहते तो हैं जलाल क्या है। बेटी ने आगे बताया जलाल का, बताया ना जलाल का मैंने क्या है? बुजुर्गी, शानो शौकत। देखें झाड़ी में मूसा के पास जब खुदा कलाम करने के लिए आया तो वहाँ पे क्या है? खुदा है, वहाँ पे जलाल है। आग लगी नजर आ रही है, वहाँ पे जलाल है। हालेलुया। जहाँ पे जलाल है वहाँ पे खुदा है, जहाँ पे खुदा है वहाँ पे बरकत है, जहाँ पे बरकत है वहाँ पे नेमतें हैं, जहाँ पे नेमतें हैं वहाँ पे शुक्रगुजारियाँ हैं। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रगुजारी कौन कौन करेगा? ये नहीं आप देखे पकाए तो शुक्रगुजारी है, आप घर में ये चीज रखवाएं तो शुक्रगुजारी है। आप अपने घर में शुक्रगुजारियां करवाएं तो करवाएं कैसे? खाना ना पकाएं, आप कोई चीज ना रखें, सिर्फ आप अपने घर में कहें कि आप खुदा को पता है कि आपके पैसे कितने हैं, आपकी पॉकेट कितनी है, आपकी हैसियत कितनी है। और भला क्या है, बाद लोग तो मैंने एक घर में ऐसे भी देखा तो उसने 5,000 उधार पकड़ के एक चढ़ा दी। खुदा को राजी नहीं किया। और वो देखे मेरे तक बात आई, लोगों तक बात गई, और क्या खुदा उससे राजी हुआ? नहीं। आप थोड़ी चीज में कर लें, देग ना चढ़ाएं, 2 किलो पका लें। क्या कहें? 2 किलो पका लें। भला क्या है? आप कर्जदार, खुदा कर्जदार होने नहीं देता। और आपको किसने कह दिया कि आप 5,000 उठा के दे पाए? हालेलुया। खुदा कर्ज नहीं होने देता, वो कर्ज से निकालता है। आप 5 किलो 5,000 की बजाय 500 रुपए की चीज, 500 नहीं है तो 50 रुपए की चीज, 5 का अदद आ गया, 5 का अदद आ गया। खुदा से कहते खुदावंद मेरे पास इतना ही है, ये जब तू बढ़ाएगा तो मैं करता जाऊंगा। हालेलुया। तो फिर देखें अपनी नेमतों को बढ़ता हुआ देखिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? आज से पकड़ के देगा नहीं पकानी। हालेलुया। पानी बढ़ा दें। पानी किसका है? और जो देग पकाई है वो किसकी है? खुदा ने हिम्मत ताकत दी तो आपके पास पैसे आए, आपको रोजगार हुए तो पैसे मिले, वो भी खुदा की चीज है और ये भी खुदा की चीज है। आप पानी सादा पिला दे तो उसमें शुक्रगुजारी करवाएं लाजमी, तो खुदा बरकत देगा। हालेलुया। खुदा औरतों की शुक्रगुजारी मांगता है। हालेलुया। तो जब उसके जलाल को देखते हैं तो फिर उसके जलाल को लाजमी देखते हैं। हालेलुया। शक ना करें, वो देखोगा भूखा। हालेलुया। ये याद रखें, आप थोड़ा दे दें, शुक्रगुजारी लाजमी कराया करें। मैं एक बात पे बहुत खुश हूँ बहन सहमा से, मैं बहन सहमा से बहुत खुश हूँ। जो कुछ मर्जी लोग चाहे खाने दें उसे, चाहे जो कोई मर्जी करें, तो लो जी पैसे तो है नहीं तो देगा मरी को चीज़ा मंडल वाली को पैसे आ रहे थे चले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ खुदा ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸੇ ਲੱਭ ਹੀ ਖੋਲਨੇ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
कुछ तो नहीं कहते क्योंकि दिल मांगदा खुदा शुक्रगुजारी विच दिल मांगदा की मांगदा ते किदा दिल हैगा वे तो मैं शुक्रगुजारी करावां शुक्रगुजारी दिल ना हुंदी है ए दिया पैसा मेरे 10,000 जेब च ते खुदा नु देन लगे 100 ही नहीं हुंदा दिल दी गल है ना ते कई दे कोल हुंदे 10,000 हुंदा 10,000 ही ते नहीं खुदा दे देगा अगे मैं जाना पिया मैं ज्यादा मुसीबत दा एदी मुसीबत दूर करदा वो वड्डा वे कि जेड़ा 10,000 रुपया रख के कोल 100 भी नहीं देंदा वो वड्डा वे वड्डा वो वे जेड़ा किसी की तंगी तकलीफ अजियत परेशानी हालेलुया हालेलुया आज से क्या करना है खुदा में शामिल होना है तो शामिल होना है तो आपने क्या करना है आपने क्या करना है आपने शामिल होने के साथ एक चीज रखनी है कि मैंने खुदावंद में शामिल होना है ना तो उसकी शुक्रगुजारी करना है हालेलुया किस किस के पास औलाद है वो शुक्र करे और जिसके पास नहीं है वो मांगना शुरू करे वो मांगे और खुद हन्ना की तरफ देखें कि हन्ना ने क्या किया उसके देखें आप कहते ऊंची ऊंची दुआएं करें तो खुदा सुनता है वो उसके सिर्फ होंठ हिल उसके होंठ हिल और उसके होंठों से खुदा ने अचानक ये मुझे पुकार रही है इसकी ये जरूरत है लाजमी नहीं है कि आप जोर जोर से 4 बजे उठ जाएं और सारे लोग जो आपसे तंग पड़ जाएं आप हल्की दुआ भी कर लें हालेलुया जैसे आप जो आप ही ना तंग हो और दूसरा भी आपके खुदा की हकारत ना हालेलुया 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 कौन कौन ऐसा करेगा कि मैं खुदावंद तेरे आगे झुकूंगा और झुकूंगा आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़े अमाल 2 बाब और उसकी 41 और 42 आयत 41 verse Banyak. हालेलुया Oh, कुछ समझ लगी आज आपको oh, ve, onda se कितने को समझ लगी कि आज करना क्या है कुछ समझ लगी है एक बात याद रखिए यहाँ पे कुछ हासिल करने के लिए आते हैं भारत बैठने के लिए रहते हैं वैसे तो अगर वैसे बैठना है तो आप घर में लेटे हुए कुछ तो हासिल करें ताकि खुदावंद आपको बताए आपका दिल यहाँ पे होना चाहिए 47 और 42 आए 47 और 42 आए बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3,000 आदमी के करीब उनमें शामिल हो गए किन में शामिल हो गए रसूलों में शामिल हो गए मसीहत में शामिल हो गए हालेलुया एक आवाज करने पर एक कलाम करने पर क्या हुआ कि 3,000 लोग ईमान ले गए और सुनते वो गौर से थे जिन्होंने गौर से सुनना है उन्होंने ही निजात पाई हालेलुया 3,000 ने खुदाम के कलाम को सुना और उस पर खुदाम का जलाल है और खुदाम ने उन्हें तब्दील कर दिया उनको बरकत दे दी आज हम कितने लोग हैं हम सुनते नहीं हैं कलाम को आवाज को सुनते नहीं तो हम कलाम आगे हमें बढ़ाता नहीं हमें तब्दील नहीं करता हमारे हालात वहाँ के वहाँ पे रह जाते हैं क्योंकि सुनते गौर से नहीं है हालेलुया जो सुनता है आपने देखा ही होगा ना कि जो आपकी बात ना सुन रहा हो आपको गुस्सा आता है आप उनसे चीज नहीं देते आपको गुस्सा आता है तो कहते चीज नहीं मैंने देनी तो इसी तरह अगर आप खुदा ही आप गौर से बात तो नहीं ना सुनते तो खुदा भी आपके से बरकत नहीं देगा जब आप खुदावंद को सुनेंगे तो खुदावंद बरकत है हालेलुया कौन कौन खुदावंद की आवाज को सुनेगा हालेलुया और 42 साइड बेटा और ये रसूलों से सलीब खाने और रफाकत करने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल थे। आमीन हालेलुया और ये रसूलों के से तालीम पाने किससे रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी
करने में मशगूल रहे। 4 चीजों का उन्होंने ख्याल रखा। क्या किया? क्या किया? पहला नंबर तलीम पाने। आप तलीम पा रहे हैं? तलीम पा रहे हैं? ये तलीम है, ये तलीम है जो आप हासिल कर रहे हैं, ये तलीम पा रहे हैं। क्या किया उन्होंने? पहले क्या किया? तलीम पाने, रफाकत रखने। आपने रफाकत रखी है। जब रफाकत का नहीं कि जिससी की बातें करना, डिस्कशन करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, राबता करना, रिलेशन बनाना, खुदा की बातों को शेयर करना, तो ये है रफाकत रखना। हालेलुया, हालेलुया। और रोटी तोड़ना चाहिए, जैसे आज हम रोटी तोड़ने लगे। क्या करने लगे हैं? रोटी तोड़ने लगे हैं। आज खुदावंद का मेज लगने लगा है, ये कर रहे हैं। हालेलुया। और दुआ करना। दुआ कौन कौन सी बहन को दुआ की? मेरा हाथ खड़ा करें तो मुझे दुआ की। मैं दुआ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हाथ खड़े करें, आप हिचकिचाएंगे तो खुदा भी हिचकिचाएगा। ये 4 चीजें करनी क्या है? रफाकत रखनी है, दुआ करनी है, रोटी तोड़नी है और खुदावंद की बातों को शेयर करना है। हालेलुया। तो फिर आप क्या है? उसकी गालियां हैं। क्या है? आप उसकी गालियां हैं और तलीम देनी है। ये याद है, गौर करेगा, इस बात पर गौर करिएगा। यीशु ने क्या कहा कि जाकर तुम तलीम दो, तलीम फैलाओ। तो रसूलों की तलीम फैल रही है। रसूल नहीं है, उनकी तलीम है। रसूल नहीं है, ये रसूल जो है नहीं है, ये है नहीं है, पर उनकी तलीम है। उन्हें तो जाकर फैलाओ और वो तलीम और रसूलों की फैल रही है। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने कहा तुम मेरी तलीम को फैलाओ। देखें 12 शिगिर्द थे, 12 से कैसे हुआ? मल्टीप्लाई हुए, 120 की जमात बनी, 120 से बढ़कर 3000 में आई और 3000 से रसूलों की तलीम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हजारों लाखों करोड़ों में बढ़ गए। हालेलुया। ये रसूलों की रसूल मार गए हैं, रसूल इस दुनिया से चले गए हैं, मगर हालेलुया। कौन कौन रसूलों की तलीम को अपनाएगा? हालेलुया। तो रसूलों की तलीम क्या आती है? रसूलों की तलीम क्या आती है? मैंने 4 बातें आपको बताई। रफाकत रखी है, तलीम पाई है, रोटी तोड़ी है, दुआ की है, तो फिर आप खुदा। हालेलुया। आज रोटी कौन तोड़ेगा? आज दुआ कौन करेगा? आज रफाकत कौन करेगा? आज तलीम हासिल कौन करेगा? हालेलुया। एक और गल सुन लो, जो स्टूडेंट ਹੁੰਦਾ ना, अपने टीचर ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲੜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। तरक्की उन्हें मिलती है, कामरानी उन्हें मिलती है, सरफराजी उन्हें। हालेलुया। कौन कौन तलीम पाएगा? खुदा की तलीम पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो 3000 को भी आपने कर लिया है। आपने क्या करना है? जब 46 को देखते हैं ना, तो ये जमा हुए, क्या हुए? जमा हुए। तलीम पाना, रफाकत रखना, पाक शराकत लेना, दुआ करना, हैकल में जमा होना। हालेलुया। क्या था? हैकल में जमा होना। आज हैकल में कौन जमा हुआ है? उसकी शाखें। आज उसकी शाखें। तो कौन कौन उसकी शाख है? और सादा दिली से रोटी खाना। हालेलुया। आज तो लगते मुर्गा मिले है तो रोटी खानी है तो नहीं खानी, दिली दिता मुर्गा तो नहीं रोटी खानी। सादा दिली के नाल सारा कुछ खाओ। हालेलुया। फिर पूरी गालियां दे। हालेलुया। आज से कौन अपने घर में जाके कहेगा कि जो अभी पक्के तुम दे हंदरा हैं? सादा दिली हैं? सादा दिली कौन कौन करे? शौक जिन्हों रख ले कि गले लग रहा है कि मैं बस गोश्त खाऊं, हाथ खड़ा करे कि मुझे गोश्त खाना है। जेड़ा गोश्त खान दा शौकीन है सारी ना होर गल
گل یاد رکھو کہ اگر گوشت یسو دا گوشت پسند کرنا دی قربانی وہ دی میز نو پسند کر لو ہاللویا ہاللویا آیا خدا کے کلام میں سے آگے بڑھیں پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 12ویں آیت آخری حوالہ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 12ویں آیت ہاللویا آج کچھ سمجھ لگی ہے کہ ہم کیوں نہیں بڑھ رہے ہم کیوں ہیں نہیں ہو رہے ہم کیوں تندرست نہیں ہو رہے ہم کیوں بے برکتیں ہیں ہم کو برکت سے محروم کیوں ہیں ہم کیوں کمزور ہیں ہم کیوں یہ فائنینشلی طور پر پیچھے ہیں ہاللویا آج آپ دیکھیں کہ مجھے کمزوری میرے دل میں خداوند کا خوف ہے کہ نہیں ہے مجھے پانی صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا مجھے خداوند پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے مجھے دعا کرنی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں رفاقت رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا میں میز میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں کہ نہیں بڑھا رہا یہ اپنے اندر ساری چیزیں جانچیں کہ یہ میرے اندر کوئی چیز کی کمی تو نہیں ہے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ پائیں گے ہاللویا کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت ہیں مثال لے لیں اے بندے نے خداوند نے کی کیا ہے کہ میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے کیا میرا کان تیری آواز کو سنتا ہے ہاللویا ہم اس کے کیا ہیں پارٹس ہیں ہم کیا ہیں اس کے پارٹس ہیں باڈی پارٹس ہیں ہم جسم کے اعضاء ہیں ہاللویا اور کوئی کام کر رہا ہے کیا کوئی سن رہا ہے خدا کے کلام کو سنے اس کے پارٹ میں اس خدا کے کلام کو شیئر کر رہا ہوں میں اس کی آواز بن کے آپ کو پہنچا رہا ہوں ہاللویا کچھ دیکھیں شرمندگی نہ کریں یعنی سے مراد یہ ہے کچھ خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں یہ اعضاء ہے خدمت کرتے ہیں یہ بھی خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں خدا کا فرض نبھا رہے ہیں اگر کوئی چیز یہاں پہ یہ پانی پائپ بنا رہے ہیں یہ بھی خدمت ہے یہ بھی ایک حصہ ہے یہ بھی ایک عضو ہے یہ بھی ایک حصہ ہاللویا ہاللویا آگے بیٹا اور ملک کے سب اعضاء وہ بہت ہیں بہت سے ہیں مگر وہاں بھی ہیں ایک ہی بدن ہے اسی طرح مسیح ہے ہاں جی ہم لوگ ہاتھ کھڑا کریں بھائی سلیم صاحب اپنا ہاتھ کھڑا کریں یہ ہاتھ کھڑا ہو گیا پاؤں ہے یہ منہ ہے ساری باڈی ہے آپ نعرے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے نعرے لگا رہے ہیں اور کتنے ہیں باڈی ایک ہے اعضاء ایک جسم ایک ہے آپ جسم کی حرکت تالیوں سے کرتے ہیں اور پاؤں پر چل کے آتے ہیں ایک خدا کے جلال کے لیے باڈی ایک ہے نام کیا ہے آپ کا سلیم کیا ہے یہ نہیں کہتے سلیم کا ہاتھ کام کرتے ہیں سلیم کے پاؤں کرتے ہیں سلیم کے اکھاں کام منہ کرتے ہیں نا سلیم صاحب کیا کر رہے ہیں باڈی کام کریے پوری آپ نے کہا آپ کے بہت ہے اور ہاللویا ہاللویا ہم خدا کی کیا بنیں گے باڈی بنیں گے کیا بنیں گے ہاللویا یسوع کا جلال آپ میں ظاہر آج کیا کرنا ہے آج ہم نے کیا کرنا ہے آج اس میں شاف کرنا ہے کیا کون کون شاف بنے گا تو یقین جانے اگر آپ کے اندر بیماری ہے تو یسوع مسیح کے پانی کے وسیلہ سے آپ ہرے ہوں گے اس کے چشمے کے وسیلہ سے آپ تندرست ہوں گے اگر آپ کے گھر میں فاقہ ہے تنگی ہے تکلیف ہے ہرا پن نہیں ہے تو خدا ان کے جلال سے خدا ان کی برکت سے خدا ان کے آنے سے خدا ان کی حضوری کے وسیلہ سے آپ لوگ باعث برکت ہو جائیں گے کیونکہ آپ اس کے پاٹ ہیں ہاللویا آپ اس کے اجزاء ہیں آپ کے گھر میں دکھ ہے لڑائی ہے فساد ہے ناچاکی ہے کوئی کمزوری ہے کوئی دکھ ہے کوئی مصیبت ہے تو یاد رکھیں جب آپ مسیح کے
दरख्त के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, उसके साथ रिलेशन रख देंगे, तो बागबान आपकी देखभाल हालेलुया हालेलुया। बागबान हमारी देखभाली करेगा, आप बीमार नहीं रहेंगे। आप बड़ा क्या करते हैं, दुआ करते हैं। मैं कहता हूँ तो दुआ करते हैं। दुआ करने का तरीका है, अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करते रहें, अपने घर के लिए दुआ करें, अपने घर के लिए नेमतें मांगें। और मांगना कैसे है, खुदा उनको सच्चे दिल से ईमान के साथ यीशु के साथ वाबस्ता रहें। ऊपर ऊपर से दुआ ना करें, लोगों को दिखाने के लिए दुआ ना करें, लोगों के लिए आप राष्ट्रवाद ना नजर आए, बल्कि यीशु के लिए यीशु को नजर आना चाहिए। लोग आपको जो कुछ जो कुछ मर्जी करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज से बड़ा क्या करना है, ये आप आते हैं ना ले जी, कुछ लोग ऐसे हैं वो बड़ा करेंगे, भाई साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਰਚ ਮੇਰੇ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। हालेलुया। तो कौन कौन आज से शाख बनेगा, मैं खुदा की शाख बनूंगा और बनूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। याद रखें, कुछ लोग हैं भाई मेरे बहनें मेरी वो बड़ा क्या कहते हैं, तो जी एक चर्च तो नहीं है जड़ा ना भाई ये नहीं एक क्रिटिकल है ने ये नुक्ता चीज़ें सरदारा कर दें, मैं तानू करनी है क्योंकि जिन्नी देर तक तुसी सही नहीं होगे मैं कहते आ रहा मैं तानू कहना जे तुसी भजो भी ना भजो, मैं तानू कहते आ रहना ते मैं कहांगा, क्योंकि सब नाल वड्डी गल है कि खुदा दे कलाम च लिखिਆ कि जेड़े चरवाहे हैगे ने उन्हां नू पकड़ होएगी, उन्हां नू पूछा जाएगा कि आया ए तू क्यों नहीं इन्हां नू दस्सिया ते मैं अपनी सदा दे लवां, मैं ਤੁਹਾਡੀ क्यों नाल लवां, मैं ਤੁਹਾਡੀ क्यों नाल लवां, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਮਨਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ कुछ नसीब अपनी कुछ नसीब समझना वा कि लो जी मैं खाना पिया पीना पिया मैं करना पिया ते उत्थे है फिर लाजर वाला हिसाब होएगा, अमीर आदमी ते लाजर वाला हिसाब इत्थों दी जेड़ी खान पीन दी है ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। हालेलुया हालेलुया। ते नसीहत वास्ते होंदे ने ते ए तरबियत वास्ते। हालेलुया। ते मुबारक है वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। आपने सुनना भी है और अमल भी करना है। खुदा के कलाम में से अगर मैं अपने पास से कोई लगा के कहूँ तो उसे छोड़ दें और जो खुदावंद के कलाम में लिखा उस पर अमल करें तो देखें आप खुदावंद के जलाल में बातें ना आपके घर में बीमारी रहेगी, ना आपके घर में दुख रहेगा, ना मुसीबत रहेगी, ना अजियत रहेगी, ना परेशानी रहेगी। यकीन जाने जो यकीन करता है भला क्या है। दो लोग थे, दो लोग, एक छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूँ। जब यायर की बेटी को यायर पता आपको सरदार था तो सरदारों के सरदार के पास आ रहा है और कह रहा है कि मेरी बेटी बीमार है। और कुछ लोगों ने क्या कहा, बेटी बात सुनो, कुछ लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उस्ताद इनको रहने दे यहाँ पे, आपकी बेटी मर गई है। और उनका ईमान है कि वो मर गई है और यीशु का ईमान है कि नहीं चल वो सोती है। हालेलुया। इसका ईमान बड़ा है। उसने यायर ने ये यकीन नहीं किया कि ये लोग कह रहे हैं कि मैं उनका सरदार हूँ, वो उनका सरदार उनके पास है और उससे पता कि मैं जिस सरदार के पास आया हूँ वो जिंदगी देने वाला सरदार है। हालेलुया। उसने उसका यकीन किया। दो लोगों ने, दोनों ने किया है, बोलना दोनों ही है।
दोनों बोले ही हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मर गई है, यीशु कह रहा है कि जिंदा है। और जाहिर ने किस पर यकीन किया? यीशु पर यकीन किया, उस पर ईमान रखा। और क्या हुआ? और कुछ सरदारों के सरदार ने उसके घर में जाकर क्या किया? लड़की को जिंदा कर दिया। हालेलुया। ईमान रखेंगे तो आप बढ़ेंगे, आपकी बीमारियां जाएंगी, आपके दुख हालेलुया। आप सब खुदावंद में बड़े और तरक्की करें और खुदावंद का जलाल आपका पर इसी तरह मंडराता रहे और इसी तरह आप तरक्की करते रहे। मेरी तरफ से सबको सलाम।